کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کتنی گناہیں کی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، پریشانیاں دور ہوں اور دل کو سکون ملے، اور یہ بھی کہ اللہ کی رحمت ہر پل آپ پر برستی رہے؟ اگر ہاں تو ایک شبد کو اپنے ہونٹوں پر بسا لیجئے، استغفر اللہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک شبد نہیں ہے، یہ آپ کی گناہوں کی معافی کی چابی ہے، توبہ کی پہلی سیڑھی ہے، اور شاید آپ کی جنت کی راہ کا پہلا قدم۔ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف استغفر اللہ کا مطلب سمجھائیں گے، بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ اسے بار بار پڑھنے کا کیا مہتو ہے اور اس سے کیسے فائدے ملتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1000 یا 7000 بار پڑھنے کی تعلیم دی۔ اس لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے، دل اور ایمان دونوں کو زندہ کرنے والی باتیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ایک عربی شبد ہے جو 2 حصوں سے مل کر بنا ہے۔ استغفر معافی مانگنا، اللہ سے۔ اس کا پورا مطلب ہوا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن یہ صرف معافی مانگنے کا شبد نہیں ہے، اس میں دل کی توبہ، گناہوں کا احساس اور بھوشیہ میں انہیں نہ دہرانے کا ارادہ بھی شامل ہے۔ ہمیں استغفر اللہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہم سب گناہگار ہیں، چاہے ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں گناہ کریں۔ ہر دن، ہر پل ہم سے گناہ ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گناہ کرتا ہے اور سب سے اچھا گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ سوچئے، اگر ہمارے اندر توبہ کی نیت نہیں ہے تو کیا ہم واقعی اللہ کے نیک بندے کہلا سکتے ہیں؟ گناہ دل پر کالے دھبے چھوڑ جاتے ہیں۔ میں برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، ہر غم سے راحت دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سنن ابو داؤد۔ 2، دل کو سکون اور راحت۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ اترتا ہے، اندر کی بے چینی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے اور روح کو قرار ملتا ہے۔ بیماریوں سے شفا۔ امام حسن البصری نے کہا، جب لوگ اپنے دکھ بتاتے تھے، بارش نہ ہونا، فصل نہ، میں برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، ہر غم سے راحت دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سنن ابو داؤد۔ 2، دل کو سکون اور راحت۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ اترتا ہے، اندر کی بے چینی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے اور روح کو قرار ملتا ہے۔ 3، بیماریوں سے شفا۔ امام حسن البصری نے کہا، جب لوگ اپنے دکھ بتاتے تھے، بارش نہ ہونا، فصل نہ ہونا، اولاد نہ ہونا، بیماریاں، تو وہاں ایک ہی چیز کہتے تھے، استغفار کرو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا۔ اس وقت سورہ نوح 100 بار، 1000 بار، 7000 بار۔ کیوں؟ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی جلدی گناہوں کی صفائی ہوگی، اتنی گہرائی سے اللہ سے کنیکشن ہوگا اور اتنی جلدی دعا قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود روزانہ 70 بار، ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اگر وہ نبی جو کبھی گناہ نہیں کرتے بھی 100 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ ضرورت مند ہیں۔ 1000 بار پڑھنے سے دل کی صفائی اور رحمتیں اترنے لگتے ہیں اور رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ کو دن چریا میں کیسے لائیں؟ 1، صبح کا آغاز۔ صبح آنکھ کھلتے ہی پہلے 100 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ ادارن کے طور پر اٹھتے ہی 33 بار، وضو سے پہلے 33 بار، نماز سے پہلے 34 بار۔ 2، سفر یا انتظار میں۔ انسٹاگرام یا یوٹیوب سکرول کرنے کے بجائے 10 منٹ نکال کر روز 1000 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ تسبیح ایپ کا استعمال کریں۔ 700
या 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते सो जाए। यह नींद शिफा वाली, रहमत वाली और गुनाह माफ करवाने वाली होगी। अस्तगफिरुल्लाह के साथ पढ़ने वाली दुआएं। दुआए कुनूत, अल्लाह फिरली व मनी व आफिनी व जुकनी। अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर, मुझे सेहत। I'm very sorry. I can't help with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. इसे पढ़कर महसूस होता है कि इसमें गहराई, विस्तार और सहज प्रवाह की आवश्यकता है। फिर भी मैं आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसे उत्तर के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। आज का दिन आपके लिए अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ है। कुछ लिखा जा रहा है आपके मुकद्दर में, एक नई राह, एक नई फिजा जिसमें सिर्फ खैर ही खैर है। आपका रूहानी मकाम अब बुलंदी की ओर बढ़ रहा है। जो लोग आपकी रूह को नहीं समझ सके, जो आपकी नियत पर शक करते रहे, वे अब खुद ब खुद दूर होते जाएंगे और अल्लाह ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में दाखिल करेगा जो नेक है, सच्चे हैं और आपकी रूह को समझने वाले हैं। इस वक्त अल्लाह की नजरे करम आपकी जानिब है। उसके लुत्फ और इनायत की बारिश हो रही है। शुक्र अदा करो उस रब का जिसने आपको हर लम्हा जिंदा रखा, आपकी हर सांस को मकसद दिया और आपके दिल को सुकून बख्शा। अब जो बरकत आ रही है वह सिर्फ आपके आमाल का नतीजा नहीं, बल्कि उस सब्र और तवक्कुल का इनाम है जो आपने हर मुसीबत में दिखाया। आपने गमों की रातों में अल्लाह को पुकारा था और अब वह पुकार कबूल हो चुकी है। आज से आपकी किस्मत करवट बदल रही है। नेक लोग आपके पास आएंगे और आपकी जिंदगी में ऐसा नूर दाखिल होगा जो हर तारीकी को मिटा देगा। तैयार हो जाओ उस नेमत के लिए जो अब आपके कदमों में रख दी गई है। आने वाली रात आपको एक रूहानी इशारा देगी। हो सकता है वो आपके ख्वाब में हो या आपके दिल की किसी गहराई से उठी हुई आवाज में। उस इशारे को समझने की कोशिश करो। अल्लाह जब किसी को बदलना चाहता है तो पहले उसकी रूह को छूता है। जिन मुश्किलों ने आपको थका, I am very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry. I am very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. I'm very sorry for any disruption or prompt attention. दिया था जिन आंसुओं में आपने तन्हाई को जिया था, वे अब बीते कल की बात हो चुकी हैं। अल्लाह की रहमत अब आपके हर गम का इलाज बन चुकी है। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं। जो रास्ते बंद थे अब उनमें से रोशनी आ रही है। जिस मंजिल का आपने तसव्वुर भी नहीं किया था वह अब आपके सामने है। आपने लोगों का दर्द समझा, दूसरों के लिए दुआ की, अपने हिस्से की रोटियां भी बांट दी, और जब किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया तब भी आपने अल्लाह से शिकायत नहीं की। अब उसी अल्लाह ने आपकी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया है। आपके घर में बरकत दाखिल हो रही है। रूहानियत की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। आपके हालात जो कभी बोझ बन गए थे अब खुद रूह की राहत बनेंगे। वो माली तंगी जो आपको तोड़ रही थी अब अल्लाह की रहमत से दूर हो रही है। रिज़्क के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था अब वही लोग हैरान होंगे कि आपका हालात कैसे बदल गया। लेकिन आप उन्हें जवाब मत देना, क्योंकि अल्लाह खुद आपकी तरफ से जवाब देगा। आपके अमल, आपकी बरकत और आपकी बुलंदियों से अब कोई रुकावट आपको नहीं रोकेगी। अल्लाह की मदद आपके साथ है।
मुश्किलें अब आपके मुकद्दर का हिस्सा नहीं रहेंगी। नफरत की जगह अब मोहब्बत आएगी। जो कुछ आपने खोया वह सब अब लौटाया जाएगा, बेहतर रूप में, ज्यादा बरकत के साथ। आपके भीतर जो सादगी और पाक दिली है वह अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जो लोग आपको पहचान नहीं सके वे अब आपकी रोशनी से चौंकेंगे। आपके चेहरे पर अल्लाह का नूर नजर आएगा। आपकी आवाज में तासीर होगी और आपके कदमों में असर। आपको अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपका नाम कामयाब लोगों की फहरिस्त में लिख दिया है। आपके इर्द गिर्द अब सिर्फ बरकतें और रहमतें रहेंगी। हर दुआ जो आपने दिल से मांगी थी वह अब कबूल हो रही है। आपके लिए यह महीना सिर्फ तारीख नहीं, यह एक दैवी घड़ी है, एक मुबारक वक्त है। अल्लाह आपको अब उस जगह ले जाएगा जहां सिर्फ सुकून और फतह आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए एक नया दरवाजा खुल चुका है, एक रूहानी दरवाजा जिससे होकर अब आप सिर्फ रोशनी की तरफ जाएंगे। अब आपका वक्त नतीजों का नहीं, निशानियों का है। वो छोटी छोटी बातें जो पहले नजरअंदाज हो जाती थीं, अब रहमत की जुबान बोलेंगी। आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे इशारे महसूस होंगे जो सीधे दिल से बातें करेंगे, कभी किसी अनजान की मदद के रूप में, कभी किसी मुस्कुराहट की शक्ल में, कभी तन्हाई में आए सुकून की आहट बनकर। हर सवेरा अब एक नई उम्मीद का दरवाजा खोलेगा। आपका दिल जो पहले डरा हुआ था अब हिम्मत से भर चुका है। पहले जो ख्वाब अधूरे थे अब वह धीरे धीरे हकीकत की शक्ल ले रहे हैं। लेकिन इस बार ये आपके सब्र के बदले में नहीं, आपके अखलाक के सिलसिले में मिल रहा है। वो अखलाक जिसने आपको चुप रहना सिखाया जब आप सब कुछ कह सकते थे। अब आपकी जिंदगी में जो लोग दाखिल होंगे वे खुद किसी दुआ का जवाब होंगे। आपको उनकी बातों में अल्लाह का पैगाम सुनाई देगा। उनके लफ्ज आपके थके हुए दिल पर मरहम की तरह उतरेंगे। ये वो रिश्ते होंगे जो मुआमलात पर नहीं, रूह की पहचान पर कायम होंगे। आपकी रूह अब पुख्ता हो चुकी है, वह नजरों से नहीं, नूर से पहचानती है। आप अब उन रास्तों पर है जहां अकेलापन इबादत बन जाता है और खामोशी में कोई पाक आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज आपके रब की है जो हर रोज आपको नई मंजिल की तरफ बुला रही है। जो कुछ आपको देर से मिला वह अब आपको जल्दी समझ आएगा। हर नुकसान जो कभी जख्म लगता था अब हिकमत बनकर सामने आएगा। अल्लाह आपको वहां पहुंचा रहा है जहां पहुंचकर आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, शुक्र है मैंने सब कुछ उसी के हवाले कर दिया था। आपके कदम अब जिस जमीन पर पड़ते हैं वह बरकत से भर जाती है। आपकी खामोशी में अब दुआओं की गहराई है और आपके ख्यालों में सिर्फ रोशनी की तामीर है। ये वह मरहला है जहां ना मोहब्बत आपको गिरा सकती है, ना नफरत आपको रोक सकती है, क्योंकि आपका सहारा अब दुनिया नहीं, मालिक हकीकी है। आप अब जमीन के नहीं, उस रब के लिखे नक्शे पर चल रहे हैं। आपका हर लम्हा अब मकसद के साथ बुना जा रहा है और उस मकसद की खूबसूरती